Hi everyone, welcome back. If you are entering class 12th commerce, so let me tell you one thing straight up. Accountancy is going to be an absolute friend for this year. A lot of students start the year terrified with the lengthy balance sheets, confusing journal entries, or messing up adjustments. But let's clear up one myth right now. Accountancy is not about memorizing or ratta marna. It is purely logical, and if you master the concepts, scoring a perfect 100 out of 100 is not just a dream, it's completely doable. So, today I'm going to break down the complete game plan for this academic year. We'll look at the exact CBSE mark weightage, how you can use our dedicated learning portal to study effortlessly, a scientific 147 rule that guarantees you will never forget a concept, and how to ace your project work. Plus, I'll show you exactly how to download all my premium study notes and worksheets absolutely for free. So, let's dive in. So let's dive into the course. So the CBSE has basically divided the whole course into two segments. One is your practical and theory, another one is your project file. So project file is basically 20 marks and remaining is your 80 marks. And out of those 80 marks, you have to spend some amount of time, or I would say significant amount of time towards the 60% marks. So let's say you understand 60% like partnership firms and accounting for companies. So you are basically halfway through, more than halfway through in your scoring methodology. And let me tell you, this 60% will eat away majority of the time. And this 20% is basically towards analysis of financial statement, ratio analysis, and cash flow statement. This is pretty straightforward, but I will be explaining you with the real life example so that you can relate them, you can understand them, and you don't have to mug up those formulas. Usually students start remembering the formulas and they forget in the exam, but I will be sharing the logics and everything with you so that you can retain it for a long time. And after that there is a project file in VivaForce, which is probably your this practical exam will happen in your school. So for that I will be sharing a lot of MCQs towards the end of this video and how you can access them. सो ये हमारा पोर्टल है जहाँ पे हमने सारा का सारा मटेरियल जो है सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है सो दैट आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज वे में मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको वीडियो नोट्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और डाउनलोड करने के लिए मटेरियल भी मिल जाएगा एंड एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद आप ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो और किसी भी कोर्स में जाना है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है जहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट और एग्जाम रिविजन्स वगैरह। जैसे मैंने कोर्स को 3 हिस्सेज में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक कोर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ये मैं आपको आगे कोर्स में अपने वीडियोज़ में बताता जाऊँगा। और यहाँ MCQs हैं, यहाँ सारे के सारे MCQs चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो अगर आपने कोई चैप्टर कर लिया और आपको लगता है कि आपको आता है तो आप यहाँ क्लिक करके इजीली आप इनको रिवाइज कर सकते हो। 2 seconds टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। और इधर कोर्स में आते हैं। कोर्स में सबसे पहले जो बेसिक्स अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट लेवल आपका बेसिक में आपको जाना है। अगर आप बेसिक्स कर चुके हो कॉन्सेप्ट से सेकंड टाइम में आपको थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस करनी है तो आप इंटरमीडिएट में आ जाओ और जब आपको लगे कि नाउ यू आर रेडी फॉर द चैप्टर देन यू कैन गो टू द एडवांस लेवल। और यहाँ थ्योरी में हम सारी थ्योरी डाल देंगे। अब बेसिक में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये चैप्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पार्टनरशिप बेसिक्स में जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लिक करूँगा यहाँ स्टार्ट लर्निंग। शुरुआत करते हैं के बाद ट्रायल बैलेंस सीखा, उसके बाद हमने वीडियो करने के बाद तो सबसे पहले हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि वाइडियो। अब यही मटेरियल अगर आपको डालने से रिव्यू करते हुए अगर लगता है कि आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके पास नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है। और अगर कोई कमेंट्स हो तो आप यहाँ डाल सकते हो कमेंट्स और वंस इट इज़ डन यू कैन गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। इसी तरह से आपको सारे के सारे यहाँ बेसिक नोट्स एंड प्रैक्टिस मिल जाएंगे। डिपेंड करता है एक चीज़ आपको चलिए। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि पढ़ाई कैसे करनी है, पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं मटेरियल आपका एक्यूमुलेट होता जाता है तो स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि हम जो भी पढ़ते हैं
हम उसको भूलना शुरू कर जाते हैं। तो उसको रिटेन कैसे करें? तो उसके लिए मैं जो फॉलो करता था वो ये 147 की स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, जो बेसिकली एक साइंटिफिक बैक्ड एक रिसर्च है जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप 147 का रूल फॉलो करते हो, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं विद इन 24 आवर्स 70 to 75% उसका हम भूल जाते हैं, और उसको रिटेन करने का एक ही तरीका होता है कि हम उसको स्पेस रीइंफोर्समेंट करें, मतलब कि एक इंटरवल के बाद उसको रिवाइज करें, तभी वो रिटेन कर सकता है। और 147 का रूल कहता है कि डे 1 में आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप कर रहे हो या कंपनी से अकाउंट कर रहे हो, तो बेसिक्स क्या होती हैं, उनकी एंट्रीज क्या होती हैं, लॉजिक क्या होता है, ये समझो। अब उसके बाद एक आध क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद डे 4 पे आप उसको रिवाइज करके अब उसके ऊपर थोड़े बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और जब वो हो जाए और डे 7 पे लॉन्ग टर्म रिटेंशन का जब टाइम आता है, उस वक्त फिर से सारा रिवाइज करो और अब उसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने MCQs करो, अपने वर्कबुक के बैक में जो क्वेश्चंस हैं या जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं डाउनलोड करके PDFs के ऊपर, उनको रिवाइज करके आप अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आप 147 का रूल फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू आप किसी भी चीज़ को कभी भी रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, सो ये वही रिपीट कर रहा हूँ मैं कि 24 आवर्स में जो आपने लर्निंग करी है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपको जोर देना चाहिए जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। उसके बाद आपको डे 2 में फटाफट रिवाइज करके आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स एंट्रीज करनी है, और डे 3 जो रिटेन करने में हेल्प करता है उसमें आपको जाके सारी की सारी आपको जो आपके चैप्टर के एंड में आपको वो दी हुई हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, असाइनमेंट दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है। अगर आप इन 3 स्टेजेस में किसी भी चैप्टर को करेंगे, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो आपको वो हमेशा आपकी मेमोरी में रिटेन मिलेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी यू एग्जाम टाइम पे आपको कोई पैनिक नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक रिवीजन करना पड़ेगा एंड इजीली यू कैन क्रैक एनी एग्जाम्स, चाहे वो आपके प्री मिड टर्म एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हो। फिर से रिवाइज करूँगा, 147 डे 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिक प्रैक्टिस, डे 4 डे 1 का पूरा रिवीजन, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, डे 3 दैट मीन्स डे 7 थर्ड स्टेप रिटेंशन, सारी की सारी क्विजेज सॉल्व करनी है, सारा का सारा जो चैप्टर आपने किया थॉरली उसको रिवाइज करना है। उस स्टेज पे आके ये आपको आपका पूरा का पूरा रिटेन हो जाएगा। तो अब आता है कि ये मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है, जो भी हम क्लासेस में पढ़ेंगे उसका हमारे को नोट्स कैसे मिलेंगे, ये सब। तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, और यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी मटेरियल इस कोर्स में यूज़ होगा, चाहे वो नोट्स हो, असाइनमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आंसर्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर थियरी, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग वुड बी देयर इन द पोर्टल फॉर यू टू डाउनलोड। इस चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर का वीडियो करो, उसमें इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड। आपको करना क्या है, उस चैप्टर के सेगमेंट में जाओगे जहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसके एक्सरसाइज फाइल के टैब में जाओगे, यहाँ पे एक्सरसाइज फाइल्स के टैब में जाओगे और वहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करोगे और उसको डाउनलोड कर लोगे। वो PDF जानबूझ के एक साइड से खाली छोड़ी गई है सो दैट अगर आप उसको प्रिंट आउट लेते हो तो ब्लैंक पेजेस पे आप अपने उसके नोट्स बना सकते हो, आप अपने हैंड रिटन कमेंट्स डाल सकते हो या कुछ ऐड ऑन लिख सकते हो। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में साथ साथ ज़रूर लिखो ताकि उससे बेटर रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग होती है। और हमारी जो पोर्टल का लिंक है वो यहाँ है, मैं वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा इसको, ताकि आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पे जा सकते हो। और अगर आपको कोई MCQs या कोई रिवीजन करने हो तो ये MCQ का ये लिंक है, ये सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।